So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेयर आई फाइंड माई सेल्फ ऑन सेल्फ ट्रांसलेशन बाय झुम्पा लाहिरी. Jhumpa Lahiri was born in 1967. She is a famous Indian American author of Bengali origin. She became the first Asian to win the Pulitzer Prize. She won the prize for her book Interpreter of Maldives. She belongs to the second generation of Indian immigrant writers in US. She is known for her short stories, novels and essays in English and Italian. Where I Find Myself isn't a different work but rather an essay within her collection Translating Myself and Others. The essay explores the process of self-translation, especially Lahiri's experience on translation her own novel written in Italian back into English. This essay is an overlap of text and self. तो जो ये essay है ये कहीं और से या different work नहीं है कोई, ये उसी के ही एक एसे का एक हिस्सा है कलेक्शंस का जो कि उसने लिखा था और इसमें वो सेल्फ ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस शेयर करती है. नाउ शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर इमर्जिंग आइडेंटिटी एज अ ट्रांसलेटर एज वेल एज अ राइटर इन 2 लैंग्वेजेस. शी एक्सप्लोर्स द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड ट्रांसलेटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ क्लोज रीडिंग ऑफ pages from Aristotle's Poetics to talk more broadly about writing, desire, and freedom. Now, she started by saying that when she was writing a work, Dove Mi Trovo, this is the novel which was written in Italian. So, while writing this novel, she has so many questions in her mind that it can be translated in English or not because it is an Italian work. Naturally, it could be translated. Any text can, with greater or lesser degrees of success. ना उसके दिमाग में ये चीज आ रही थी कि ये वर्क ट्रांसलेट किया जा सकता है या नहीं. फिर उसने सोचा भी हाँ क्यों नहीं किया जा सकता, वर्क तो कोई भी ट्रांसलेट किया जा सकता है चाहे उसे सक्सेस अच्छी मिले या ना मिले. नाउ फिर वो बात करते हैं कि एक राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, एक ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस वर्क को किस तरीके से ट्रांसलेट करता है. सेम मीनिंग कैन बी ट्रांसलेटेड, गिवन सेम मीनिंग्स दे सकते हैं while translating. It depends on the translator. And yet, even as I was writing, 2 questions were repeatedly coming to my mind. फिर वो बताती है कि 2 क्वेश्चंस लगातार ही उसके माइंड में आ रहे थे. The first is, when would the text be turned into English? ये टेक्स्ट इंग्लिश में कब टर्न होगा? Who would translate it? कि इसे कौन ट्रांसलेट करेगा? Now she hired someone to translate, but she was not satisfied by that work. तो उसने क्या किया, उसने खुद ही ये टास्क लिया एंड खुद ही उसके सेल्फ ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी. The responsibility of translation is as grave, as precarious as that of a surgeon who is trained to transplant organs or to redirect the blood flow to our hearts. And I wavered at length over the question of who would perform the surgery. So by this example, she tells us that difficult कितना होता है कि translation का जो task है, that is a very difficult task for her. Lahiri began by her experience that she was hesitating. Now here she starts कि जब उसने लिखना शुरू किया तो उसे कैसा फील होना शुरू हुआ एंड व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस. सो शी टेल्स कि जब उसने लिखना शुरू किया तो वो काफी ज्यादा हेसिटेट कर रही थी कि कैसे वो लिखना शुरू करे. एक इटालियन नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. Her mind was full of fear. She can't lose the originality of the text. She had done hard work on this novel in Italian. वो इतनी डरी हुई थी, उसने सोचा कि जो ओरिजिनलिटी थी उस टेक्स्ट की जो इटालियन में लिखा था कि उसका जो विजन है वो शी कांट बिट्रे दैट विजन. उसे उस टेक्स्ट पे इतना हार्ड वर्क किया एंड शी कांट डू द सिंपल वर्क एज अ ट्रांसलेशन. ऐसा नहीं है अभी उसको नॉर्मली ही ट्रांसलेट करते हैं, बट ट्रांसलेशन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है. वो बताती है कि राइटर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके जो है एक टेक्स्ट को लिखा हुआ होता है. नाउ व्हाट शी फील्स व्हाइल ट्रांसलेटिंग, the act of self-translation. Now she compares
ट्रांसलेशन विद टेनिस मैच। वो बताते हैं कि जैसे इसने ट्रांसलेशन करनी शुरू की, कंपेयर किया उसने, कि ऐसा लगा उसे जैसे कि वो टेनिस मैच खेल रही है। उसमें जो आइडियाज थे वो उसके टॉस हो जा रहे थे बिटवीन लैंग्वेजेस, फोर्सिंग हर टू री एग्जामिन द ओरिजिनल टेक्स्ट विद हर फ्रेश आईज। उसका मन कर रहा था कि वो बार बार उसी जो उसने टेक्स्ट इटालियन में लिखा है उसी को री एग्जामिन करे टू क्लेरिफाई हर थॉट्स। एंड दिस इज व्हाट शी लर्न्ड व्हाइल ट्रांसलेटिंग। Discovering new depths highlights how translation, even self-translation, isn't just a mechanical process of finding synonyms. वो बताते हैं कि इसमें ट्रांसलेशन करने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि सिर्फ हम जो वर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढेंगे. It becomes a journey of rediscovering her own intentions and the underlying message of work. वो बताते हैं कि वो उसको एक दोबारा से नई जर्नी मिल गई. न्यू जर्नी जो थी उसकी एक तरह से शुरू हो गई जिसमें उसने अपने आप को दोबारा से रीडिस्कवर किया. वो जो सब कुछ उसने इटालियन में लिखा था वही सब कुछ उसने रीडिस्कवर किया, री एग्जामिन किया. जब उसने अपने वर्क को, उसको अपने ही इंटेंशंस के बहुत सारे मीनिंग्स डिस्कवर किए उसने. This deeper exploration allows her to refine the English version, potentially even revising the original Italian text for better clarity or impact. उसने अपना वो जो टेक्स्ट था वो रिवाइज किया. किस लिए रिवाइज किया? सो डेट उसे एक बेटर क्लैरिटी मिल सके. एंड उसी के साथ जब उसने रिवाइज किया उस टेक्स्ट को, एंड उसके बाद उसने उस टेक्स्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स भी देखी. The essay emphasizes how self-translation can unearth new layers within the writing. Phrases or concepts that seem clear in Italian might take on new interpretations in English, promoting Lahiri to consider alternative word choices or sentence structures. Now, इसमें वो बताते हैं कि उसने फोकस किया था राइटिंग लेयर्स के ऊपर. जो राइटिंग लेयर्स डिफरेंट तरीके से जो उसने लिखना शुरू किया, वो सारी चीजें जो थी उसके सामने अनरिवील हो रही थी कि किस तरीके से वो एक सिंपल फ्रेज को, एक इटालियन फ्रेज को इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट कर सकती है. जो फ्रेजेस और कंसेप्ट जो इटालियन में थे उसने उसको जो था इंटरप्रिटेशन की है उसकी इंग्लिश में. एंड उसके साथ साथ उसे ये भी पता चला कि एक ऑल्टरनेटिव वर्ड्स किस तरह से चूज किए जाते हैं, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है. और इस जर्नी को वो बोलती है कि एक लर्निंग प्रोसेस था जिसमें कि उसकी सेल्फ ग्रोथ भी हुई है व्हाइल ट्रांसलेटिंग. इन द एंड शी कंक्लूड्स and she tells us that she has found herself in a different way. This title takes on a deeper meaning with the act of self-translation. Lahiri isn't just finding the right words in English, she is rediscovering herself as a writer. तो उसने न्यू आइडियाज को डिस्कवर किया, न्यू उसको लर्निंग प्रोसेस मिला एंड उसने अपनी आइडेंटिटी को रीडिस्कवर किया.